as the summer season moves in, we get to see more and more amount of people coming with urinary complaints. Why so? People are more thirsty, they drink more water, but at the same time, perhaps we're not able to match the real requirement of the summer season that the body has to probably participate in. In other words, as a urologist, we get to see more amount of urinary infection, more amount of bleeding in urine, more amount of concentrated urine coming and foul smelling urine, and obviously more amount of stones and stone burden to a clinic of urologists across the city and the country. So friends, we're sitting in March 2023, a time when it's already very hot and sweltering outside in this city and in the country, almost in every city, which means summer season brings about a requirement for extra amount of water intake, partly because you feel more thirsty, partly because you're sweating more than what you would in normal conditions around. It's just that perspiration, the body's demand for improving your water intake and taking it forward, where your homeostasis or body's composition is well maintained in a hydrated state. A lot depends on your own motivation about preventing stone formation. What do you mean by preventing stone formation? Now, once a stone former, always a stone former. That means there is some reason why you form stones again and again. And people ask me this. On a Saturday evening, after completed this 6 long days of work at the Kokilaben Hospital out here, we see that as urologists in the department, we all get to see more stones than anything else in the summer seasons, which is an extended summer season at this point in time. It necessarily means that the amount of water required to be able to dissolve all the solutes, which the kidney actually brings out from the blood to purify the blood as a purifier of the blood all the time, maintaining the entire body's mechanism absolutely automatically into the most pure state. The kidney brings upon itself all that which it probably has to suffer from. What? Extra amount of solute load, all that calcium, oxalate, uric acid, magnesium, phosphate, all that which is actually being pulled out as byproducts for extreme amount in the blood will have to be dissolved in a liquid state and has to be pushed out as an excretory product called urine. So urine वो शरबत है जिसमें ये सारा कुछ मिला जाता है और ये मिलाते वक्त उतनी लिक्विड उतनी पानी होनी चाहिए कि सारा जो भी प्रोडक्ट्स है जो फाइनली जोड़ के स्टोन बन सकता है वो स्टोन बनने ना पाए. तो मैंने कहा कि once a stone former always a stone former because स्टोन बनने की जो पूरी पॉसिबिलिटी वो इसलिए है कि ये जो शरबत है ये बहुत कंसंट्रेटेड है. मिसाल के तौर पे अगर हम इस प्याली में अगर हम कहीं 15 कप इसमें अगर 15 चम्मच चीनी डाल देते हैं तो इसको डिसॉल्व करने के लिए इस पूरे पानी से डिसॉल्व नहीं हो पाएगा. इसका मतलब ये है हमें इस एक जग पानी डालना पड़ेगा उन 15-20 चम्मच चीनी को मिलाने के लिए, वरना हम इसमें अगर 20 चम्मच चीनी मिलाते रहे तो पूरे दिन मिलाते रह जाएंगे और वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा. इसका मतलब है इसमें जो सॉल्यूशन बन रहा है वो सुपर सैचुरेटेड है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या सॉल्यूशन जिसमें ज्यादा सॉल्यूट्स हैं और सॉल्वेंट कम है वो भी इसको डिसॉल्व नहीं कर पाएगा. तो जो चीज तरल पदार्थ में होता वो शायद सॉलिड स्टेट में रह जाता है और वो सतह पे जम जाता है. तो इस तरह की चीजें जो जमने वाली हैं वो दोनों जुड़ सकती हैं, जुड़ के पत्थर बनती है. The common stone in India is calcium oxalate. ऑक्सलेट खाने पीने से और उसके साथ साथ बॉडी के अंदर से भी बनता है. तो कैल्शियम जो अंदर से मोबिलाइज भी हो रहा है, कुछ खाने का कैल्शियम है, ये सब कुछ एक इंटरनल होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म में डिस्टर्ब हो सकता है अगर एक चीज ज्यादा एक चीज कम है. तो कुछ अगर बहुत कम है तो बॉडी यहाँ वहां से कहीं से लेके कंपेंसेट करती है. तो ये पूरी कंपेंसेटरी पावर जिसमें हम सारी चीज को अगर होम्योस्टेटिक नॉर्मल मैकेनिज्म में मेंटेन करना चाहते हैं तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को बिल्कुल दुरुस्त रखना पड़ेगा. इन अदर वर्ड्स हमें उतना पानी तो बॉडी को देना है जितना उसे जरूरत है और वो हम शायद डिफाइन नहीं कर सकते. इसलिए स्टोन फॉर्मर्स में हम कहते रहते हैं कि आपकी पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, बशर्ते आप एक कार्डियक पेशेंट नहीं है, एक नेफ्रोलॉजिकल पेशेंट नहीं है जहां आपके नेफ्रोलॉजिस्ट से कार्डियोलॉजिस्ट ने आपकी पानी घटा दी है क्योंकि अभी कार्डियक फंक्शन है, किडनी फंक्शन घट चुकी है, ये ऑर्गन्स इतना पानी झेल नहीं सकते. आप कहीं 1-1.5-2 लीटर ही पानी पी सकते हैं कंपेयर टू नॉर्मल लोग जो स्टोन फॉर्मर्स है जिनको हम कहते हैं कि 2 से 4 लीटर पानी आराम से पियो, डिवाइड करके पियो, सुबह दोपहर शाम रात, खाने के पहले, खाने के बाद और सोने के पहले भी पानी पी के सो, ताकि आपकी जो यूरिन बन रही है, जो किडनी यूरिन बना रही है, उसमें एक्सेसिव वाटर अगर जा रहा तो ये यूरिन डाइल्यूट है. एटलीस्ट वो फिजिकल थ्योरी ऑफ सुपर सैचुरेशन जो मैं इसके माध्यम से समझा रहा था वो तो आप अपने तरफ से क्लियर कर सकते हैं, एटलीस्ट मेडिकली उतना तो कर सकते हैं आप. तो स्टोन फॉर्मेशन की जो रीति है ये एक तरह की कुछ जुड़ने से होता है. अब दूसरी कहानी ये है कि सिट्रेट लेवल्स जो यूरिन में एक ऑप्टिमल लेवल तक होती होगी वो माना जाता है कि स्टोन फॉर्मर्स में थोड़ी सी कम रहती है. सिट्रेट लेवल्स को इंप्रूव करने के लिए आपको सिट्रिक एसिड की जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सिट्रेट्स, लेमन, ऑरेंज, आंवला, जो भी कुछ है, इस तरह की चीजों को उस लेवल पे लें कि वो फाइनली बाय प्रोडक्ट बन के यूरिन में रहता हो,
लेकिन वो बहुत हद तक कितना काम आता है और कितना काम नहीं आता, ये देखा जाता है जब लोग लेमन ऑरेंज में डूबते हैं और स्टोन्स नहीं फॉर्म कर रहे होते। इसकी मेडिकल तरीकों से भी हम सिट्रेट को बॉडी में सप्लाई करते हैं। जो दवाइयां आज अवेलेबल हैं, ये सब उस जमाने में नासा के एक्सपेरिमेंट्स आज से 20 30 40 साल पहले, जिसका सही रूप आज देखने को मिल रहा है पिछले 15 20 साल से। हम वो सिट्रेट थेरेपी जो देते हैं, जिसमें सिट्रेट की लेवल हम यूरिन में इंप्रूव करते हैं। तो पूरा आज ये जागरूकता इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अवेयरनेस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज कभी कभी लोग थक जाते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि ये स्टोन हमें बार बार आ रहा है और हम इमरजेंसी में ही आते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि एक तरफ हम मेटाबॉलिक इवोल्यूशन कर रहे हैं और स्टोन नहीं बनने देने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्टोन बनने वालों में हम वो सब चीजों को ऐसा रखना चाहते हैं इतनी ऑप्टिमल स्टेट में कि स्टोन ना बने। बिकॉज एज आई सेड, इफ द स्टोन फॉर्म्स अगेन एंड अगेन, इट वोंट बी सिटिंग साइलेंट। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ स्टोन किडनी में ये है, अगर आप उसको हेल्थ चेकअप में करा के स्टोन को देख के बैठे रह गए, तो वो या तो स्टोन धीरे धीरे बढ़ेगा, और आपको 2 और 5 मिलीमीटर दिख रहा है, कल 7 और 12 मिलीमीटर का होगा, वो साइलेंटली बढ़ेगा। और फिर वो बढ़ेगा, उसके बाद कभी ना कभी वो यूरेटर के रास्ते गिर सकता है, और वो एक इमरजेंसी बनेगी शनिवार की शाम, 31 जनवरी की शाम, जब आप शायद कुछ और करना चाहते हैं, उस समय आप एक इमरजेंसी में हैं अपने फैमिली के साथ। तो बहुत जरूरी है कि अगर किसी के हेल्थ चेकअप में किडनी में स्टोन दिखता है, तो आज के जमाने में वो ट्रीटमेंट आ चुकी है। जैसे पहले हम लिथोट्रिप्सी करके बाहर से पाउडर करते थे, आज हमारे पास फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोप है। हम उस दूरबीन के रास्ते किडनी में जाकर के उस पत्थर को वहीं पाउडर करके चकनाचूर करके निकाल सकते हैं। विडम्बना देखिए, एक तरह से ये छोटे छोटे पाउडर जुड़ जुड़ के पत्थर बनते हैं, और ये बड़े बड़े पत्थर बनते हैं, तो हमारी आपकी नींद खुलती है कि हम सोनोग्राफी और सीटी स्कैन करा के इनके बारे में असेसमेंट करते हैं। और एज ए यूरोलॉजिस्ट हम सब देश दुनिया में इसी पत्थर को फिर पाउडर चकनाचूर करते हैं, बैक टू वेयर इट बिलोंग टू। छोटे छोटे पाउडर उनको फिर वॉश करके निकालते हैं। सो इजंट इट अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन वेयर वी वेक अप टू द फिनोमेना अर्ली? Could we not improve our water intake divided across the day in such a way that our hydration levels are very good? Could we not improve our citrate levels in urine measured by citrate levels in the metabolic workup कि 24 आवर citrate level बिल्कुल ऑप्टिमल है, ताकि कैल्शियम ऑक्सिलेट आए तो हेलो बोल के नीचे चले जाएं, डिजॉल्व होके जुड़ ना पाए, बिकॉज citrate prevents the joining of calcium and oxalate in urine, the commonest stone calcium oxalate in the country. यूरिक एसिड लेवल्स अगर हाई है तो वो भी स्टोन्स बनाती हैं। कोई बार बार स्टोन बना रहा है, किडनी में मल्टीपल स्टोन्स हैं, कुछ स्टोन साइलेंट है, कुछ और स्टोन हर महीने हर साल बन रहे हैं, ऐसे लोग की मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन में बहुत बार हम पैराथायराइड ग्लैंड्स को देखते हैं, जो थायराइड के पीछे है। पैराथायराइड एडिनोमा, पैराथायराइड हाइपोप्लेसिया, उस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे स्टोन्स बार बार बन सकते हैं, तो उस समय पैराथायराइड की सर्जरी होती है, ताकि आपके वो बोन्स की इश्यू, आपकी वो जॉइंट्स की इश्यू, मसल्स की इश्यू, और ये बार बार स्टोन बनने की इश्यू, ये पूरी जो प्रक्रिया है, इसको कैल्शियम की रिवर्सल के द्वारा बैंड मास्टर ऑफ द एंटायर ऑर्केस्ट्रा पैराथायराइड ग्लैंड को ही खबर ली जाती है। तो हमारा कहना कि यूरिन का डाइल्यूट रहना, यूरिन का अंडर अंडर सैचुरेटेड रहना इतना जरूरी है स्टोन फॉर्मेशन में, और ये शायद हर स्टोन फॉर्मर के लिए जरूरी है। तो अगर आप स्टोन फॉर्मर है, अगर आपने बार बार स्टोन्स बनाया है, या आपने पहले स्टोन बनाया था 2 10 साल पहले और भूल गए, तो मेरा रिक्वेस्ट है समर सीजन में एटलीस्ट सोनोग्राफी तो करिए। सोनोग्राफी में बताएगी कि स्टोन है या नहीं। अगर है तो हम उसे क्वांटिफाई करते हैं एकदम लो डोज सीटी स्कैन में, जानने के लिए कि ये स्टोन कितनी हार्ड है, इसकी एक्चुअल साइज क्या है। हम दूरबीन के रास्ते अंदर जाकर के स्टोन्स को निकालना चाहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम स्टोन्स को किडनी से निकालें, किडनी को स्टोन फ्री करें, और 2023 की समर सीजन में हम अपने आप को सिर्फ हेल्थ चेकअप करके उन रिपोर्ट्स को देख के और ट्रीटमेंट से वंचित ना रहें। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट इफ वी हैव स्टोन्स इन द किडनी, let's not look at only a dissolution therapy, but see the urologist in your place. He will help you out to identify the stone's capability, the stone's issues. If it's a lower calyceal stone, perhaps you may escape days, weeks, or months. But if it's a middle or upper calyceal stone, that means stone in locations from where it's falling down into the ureter is almost a geopardian and looking like threatening to happen, then it's nice to do a flexible ureteroscopy called RIRS at the Coquitlam Hospital and Department of Urology. As consultants, we look into this important aspect of spreading awareness to each and every one of you in the society. Society includes Andheri West, Goregaon, Bandra, and Malad, and the entire city out here and the country as such. We look forward to people identifying that stone formation sadly happens to be an internal rule, which is a very silent affair. As silent as your age is gradually changing every year. One fine day you wake up, cut a cake, you cross a pedestal to one more year. So you celebrate that year. But remember, you've grown less younger or older that year. So celebration is one way of looking at it. Similarly, celebrating that birthday with an ultrasound not having a kidney stone is a way you cross a landmark by a wonderful, very focused activity between your doctor and yourself, that you improve your water intake dramatically, improve your lemon and orange, which has a citrate giver to the urine, and therefore it keeps the complex of calcium oxalate from not joining. बहुत लोग पूछते हैं क्या खाने से पत्थर बनता है? मैंने कहा खाने से पत्थर नहीं बनता, वरना आपको बचपन से लेके शाम तक पत्थर ही बनते रहता। पहला घर में सबको पत्थर बनता,
तो खाने से पत्थर नहीं बनता, ऐसे नहीं कुछ आपने खा लिया और पत्थर बन जाएगा। ये वो सीड्स नहीं है जो आप हर समय घबराते रहते हैं कि टमाटर के सीड्स और भिंडी के सीड्स और गुआवा के सीड्स और हम कोई सीड्स वाले फ्रूट खाएं और अगर सब्जी खाएं तो उससे पत्थर बन जाएगा। ये गया, ये लिटरेट लोगों का जमाना नहीं है। ऐसा ना होने दें कि आप ये सोचे कि जो सीड्स हैं उससे पत्थर बनता है, ये सच नहीं है। पत्थर दरअसल एक तरह की पाउडर से न्यूक्लिएट होके एग्रीगेट होके क्रिस्टलाइज होके फिर वो पत्थर बनता है। तो बनने में समय लगता है, स्पेशली अनलेस वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि काफी ज्यादा कैल्शियम, काफी ज्यादा ऑक्सलेट और इन दोनों को जुड़ने ना देने के लिए वो चीज है ही नहीं जिसे सिट्रेट कहते हैं। तो सिट्रेट यूरिनरी में इन्वायरमेंट में थोड़ी कम रह सकती, कम रहती भी है। तो इसलिए जागरूकता जरूरी है। समर के मौसम में जितने भी स्टोन फॉर्मर्स हैं, बाकी लोग भी जो उनके फैमिली वाले हैं, सुबह उठे तो 2 गिलास पानी, ब्रेकफास्ट के पहले 2 गिलास पानी, लंच के पहले 2 गिलास पानी, डिनर के पहले 2 गिलास पानी और सोने के पहले 2 गिलास पानी। हमारी नई मोटो है, समर सीजन में भूख लगे तो पानी, प्यास लगे तो पानी। इन अदर वर्ड्स, इतना पानी हो बॉडी में डिवाइडेड, हम बार बार यूरिन जा रहे हैं और ये डाइल्यूट यूरिन निकल रहा है। और ये यूरिन में इस तरह की डाइल्यूशन है कि जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, फॉस्फेट, ये सब कुछ सब डिजॉल्व होता जा रहा है। किडनी में आ तो रहा है और किडनी में डिजॉल्व होकर वो बिल्कुल तरल पदार्थ की तरह निकल रहा है। वो हमें स्टोन बनने ही दे रहा है, हमारे पहले स्टोन्स को बढ़ने ही दे रहा है। तो ये पूरी आबो हवा जो हमें बदलना है, एनवायरमेंट बदलना है किडनी की सिस्टम में, जहाँ पे ये हाईली कंसेंट्रेटेड यूरिन फाइनली स्टोन्स बनता है या वो यूरिन बनता है, हमें उस चीज को बदलने की रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली जो बार बार स्टोन्स बना रहा है उसको सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, उनके लिए दवाइयां होती हैं, उनके लिए बहुत स्पेसिफिक एडवांस मेटाबॉलिक इवोल्यूशन है जो हम यहाँ पे करते रहते हैं। तो याद रखिएगा, कुछ ऐसा खा लेंगे जिससे स्टोन्स बन जाएगा, ये सच नहीं है। आप सब कुछ खाते हैं और सब कुछ से पत्थर नहीं बनता। पहला ये बॉडी की मेटाबॉलिज्म किस तरह से, बॉडी कैसे चर्न करती है पूरी चीज को, उसे कारण हमें जानने की जरूरत होती है। तो आज के लिए बस इतना ही कि वंस अ स्टोन फॉर्मर ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर, प्लीज प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम हैविंग अनदर इमरजेंसी ऑफ अ यूरेट्रिक स्टोन। एक बार यूरेट्रिक स्टोन था, आपने इमरजेंसी में शनिवार की रात आए, रविवार को वेट करना पड़ा, हमने सोमवार को ऑपरेट किया, एक्सटेंड डाला, आपको डिस्चार्ज की और उसके बाद उस स्टेंट को निकाला। ये सब कुछ होने के बाद आई थिंक हम चौकन्ने हैं कि हम अगली बार स्टोन नहीं होने देंगे डॉक्टर पांडे। हम अवश्य फॉलो अप करना चाहते हैं और वो फॉलो अप का मतलब ही है कि हम अपनी डिसिप्लिन को बनाए रखेंगे, अपनी किडनी को उतना सपोर्ट करेंगे। लोग रात को पानी नहीं पीना चाहते, पर रात को किडनी तो काम करती है। रात भर किडनी काम कर रही, यूरिन बना रही, तभी तो आपके अंदर की होम्योस्टैसिस, तो इंटरनल मैकेनिज्म मेंटेन्ड है। कहाँ से काम करेगी अगर आपने उसे कोई रॉ मटेरियल नहीं दिया? तो इसलिए वो पेट्रोल देने की जरूरत है जिससे सब कुछ ईंधन और वो जिससे गाड़ी चलेगी। तो किडनी को वो पेट्रोल चाहिए जिसे हम पानी कहते हैं, और पानी के द्वारा किडनी को इतना पानी नहीं चाहिए, पर आप उनको पानी दे रहे हैं। आप यूरिन आपकी डाइल्यूट रहती है, आपकी बॉडी अच्छी खासी हाइड्रेटेड है। वो हाइड्रेटेड स्टेट में आपकी बॉडी और किडनी फंक्शन करते हुए सारा वो पानी बाहर निकालती है, और उसका फायदा आपको है कि आपकी यूरिन डाइल्यूट है। आपकी यूरिन समर सीजन में बहुत स्मेल हो सकती है, जो बहुत एसिडिक यूरिन में होता है, जो बहुत ही कंसंट्रेटेड यूरिन में होता है। तो डिवाइडेड वाटर इनटेक, लेमन एंड ऑरेंज, is beneficial for umpteen reasons around. It is important that we wake up this summer season 2023. I've been speaking on this channel for last few years, enthusing each of you to wake up, that हम स्टोन बनने न दें, हम स्टोन्स को जल्दी पकड़ें हेल्थ चेकअप में, और फिर हम घर में ना बैठे रहें। फिर वो यूरोलॉजिस्ट को मौका दें। कोकिलाबेन हॉस्पिटल में हम सब यही आपको प्रीच करते रहते हैं अपने डिपार्टमेंट में कि कैसे हम स्टोन्स को बनने न दें। स्टोन बनता है तो उसको कैसे हम टाइम पे ट्रीट कराएं, और टाइम पे ट्रीट नहीं कराया और स्टोन को बनने दिया, जो हमने फॉलो अप नहीं की, तो फिर वो स्टोन इमरजेंसी बनाता है और वो आके यूरेटर में ब्लॉक करता है। फिर उसकी इमरजेंसी अलग होती है, उसमें दर्द, पीड़ा, जलन, और अगर फ्लैंक पेन एक तरफ हो रहा है तो उसको हर समय ऑर्थोपेडिक पेन ना पूछे, अनलेस वो पोस्चुरल पेन है। एक तरफ फ्लैंक पेन होना सडनली रात को या ट्रेन में या ट्रैफिक में या फ्लाइट में, और वो पेन इतना ज्यादा, इतना तीव्र होना कि फिर आगे की तरफ पेन, पीछे से आगे आना, और फिर कुछ पेशाब में थोड़ा खून आना, जलन होना, और फिर नौजिया, वॉमिटिंग होना, कहीं फीवर होना क्योंकि आप डायबिटिक हैं और ये स्टोन पूरी यूरेटर को ब्लॉक कर रही है, तो ये सब कुछ आपके हित में नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है आज के जमाने में हम चौकन्ने रहें। अवेयरनेस इज द की, लिटिल लर्निंग इज डेंजरस। होता क्या है, हम गूगल में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं और इंटरव्यू लेते रहते हैं डॉक्टरों की, पर उससे फायदा नहीं है। तो आपको इस प्रॉब्लम से बचना है, जो एक तरह की पीड़ा बनती है, जो किसी को बन सकता है, कल इसको, परसों उसको, कल मेरे को, कल आपको, हमें इससे बचना है। और अगर है तो इसे टाइम पे ट्रीट करना है, ये दोनों चीजें हैं। सो आइडेंटिफिकेशन अर्ली इज द ट्रूथ ऑफ द मोमेंट, and early identification will solve this jigsaw puzzle, that we don't land up in emergencies on a stone which we are sitting and continue to do ultrasounds and CT scan year after year, और सोचे जा रहे हैं ट्रीटमेंट कराना है नहीं कराना है, डिसॉल्व कर लेंगे। कहाँ स्टोन डिसॉल्व होते हैं? वो बहुत सॉफ्ट स्टोन जिनकी हाउसिल यूनिट 50, 100, 200 यूनिट है सीटी स्कैन में, वो शायद डिसॉल्वेबल होंगे परहैप्स, लेकिन कहाँ आपने शेवलिंग पे पानी डाला 100 साल तक और वो शेवलिंग डिसॉल्व हो? तो स्टोन्स आर हार्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, दीज आर कंक्रीशंस व्हिच हैव एक्चुअली एग्रीगेटेड एंड बिकम अ रियली हार्ड स्ट्रक्चर। इनका डिसॉल्व होना इतना आसान नहीं होता। मेरा मानना है कि स्टोन्स में हर कोई ट्रीटमेंट कर लेता है, हर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट करती है, पर यूरोलॉजिस्ट आपका सच्चा मित्र है।
for a urologist to treat you and cure you of a stone and to make you aware of the future prospects of stone formation, which can be preventive, which can be well treated on a follow-up, and which can be picked up early to prevent an emergency, is the motto of the game today in summer 2023. So friends, from the Kokilam and Dhirubhai Ambani Hospital, as I sign off today on a Saturday evening, I want to make you aware that summer season can come and creep in with multiple complaints around. Improve your water intake, your exercise, your diet, your hygiene, your discipline, your goals, your sleep, all those matter to regenerate your body. Similarly, support your kidneys. World Kidney Day says that let the kidneys not suffer from 10 reasons of various toxicities that we do, of taking painkillers, not drinking good amount of water, not giving enough raw material that the kidney deserves around. Friends, you need to be helping your kidney, be friends with the kidney, help him out and take it forward to the next level. Thank you.